Our today's class is for 12th class. As you know, we are learning subject geology, which is also known as earth science. Our today's class is to be continued for Richter scale, as I have already told you that for easy understanding or to easily understand what is this based on logarithmic scale which were developed by the Charles Richter in 1935. This scale defines magnitude as the logarithm of the ratio of the amplitude of the seismic waves to an arbitrary binary amplitude. So in short, I will say you that if at any place magnitude of an earthquake has to be found 4, has 10 times ground motion or ground movement than the earthquake where the magnitude have been recorded 3. Similarly, the place where the magnitude have been recorded 3 have 10 times more ground movement than that place where magnitude have been recorded 2, and so on. So it is a simple scale. We use logs for the easy understanding purpose. I have mentioned here 2 examples for your easiness to calculate the magnitude on the Richter scale. If an earthquake where the magnitude have been recorded 16,550 times more powerful. So this is an earthquake where the magnitude is high, but we have mentioned it here 16,550 times more powerful than than the earthquake where the magnitude have been recorded 3.7. So this is weaker and this is stronger. So how we can find the actual or magnitude of this place? So for finding the magnitude of this place where magnitude is MA on the Richter scale, we mention the magnitude of the next place and add the number of times more. So we use, for that purpose, we use log value of that number which is more, and we get the actual magnitude of this place. So magnitude of MA on Richter scale is, we use this second place number 3, magnitude 3.7 plus log of the time is this. So log of 16,550 is 4.3. 3.7 plus 4.2 is equal to 7.9. So next example is also similar. If an earthquake with magnitude A is 1 lakh times weak than the Japan earthquake, which is 9.1. So 9.1 is the powerful than this. This 1 lakh times is weaker. How we can find its magnitude on Richter scale? For finding magnitude on Richter scale, this higher value magnitude of a place is to be subtracted by log value of this weaker earthquake. So log value of 1 lakh is 5. So 9.1 minus 5, that is 4. So magnitude of this weaker earthquake MA or Richter scale is 4.1. So for more easily understanding these two, we use a formula. So this formula can easily find out the two different magnitudes or find the magnitude of a particular place on the basis of the formula which is used by the Richter for getting the value of particular place magnitude value. So
For this we have also used these small kilos which are in mathematics in your previous classes, especially in 9th 10th classes. You should not necessarily remember these, but you will face some of the values which are almost similar to them. For easy understanding, I will try to repeat it. रेक्टर ने जो ये चार्ल्स रेक्टर ने स्केल बनाई है 1935 में, ये एक बेस 10 लॉगरिथमिक स्केल इसने बनाई है ताकि ये जो मैग्नीट्यूड है एक लॉगरिथमिक रेशियो होता है एम्पलीट्यूड जो सिस्मिक वेव्स का एक आर्बिट्री माइनर एम्पलीट्यूड के साथ। दूसरे लफ्जों में हम इस तरह कहेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर किसी जगह के अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 4 रिकॉर्ड किया गया हो और उस जगह का मैग्नीट्यूड जिसका 4 रिकॉर्ड किया गया हो उसकी ग्राउंड मोशन ऑफ ग्राउंड, मूवमेंट ऑफ ग्राउंड 10 गुना ज्यादा होगी किससे? उस जगह से जहां पे मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का रिकॉर्ड किया गया हो 3। इसी तरह से जिस जगह मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया हो 3 उसकी ग्राउंड मोशन 10 गुना ज्यादा होगी उस अर्थक्वेक से जहां रिकॉर्ड किया हुआ मैग्नीट्यूड 2 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी ये चलता रहेगा इसी 10-10 गुना के हिसाब से। और इस लिहाज से मैंने छोटी मोटी एक एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा मोटा टेबल बनाया है, लॉग टेबल। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर किसी जगह पे 5 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया हो मैग्नीट्यूड, लॉग के हिसाब से लॉग ऑफ बेस 10⁵ के बराबर होता है। इन अदर वर्ड्स उसका वैल्यू होगा 1 लाख। इसी तरह से अगर 4 का देखेंगे हम तो 10 कम हो जाए क्योंकि ये 10 टाइम्स 5 का 10 टाइम्स मोर था 4 से। इसी तरह 4 का 3 से 10 टाइम एक 10 कम होता जाएगा एज पर दिस लॉगरिथमिक फार्मूला, बेस 10 लॉगरिथमिक फार्मूला। इसी के हिसाब से ये काम करता रहेगा। इसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स आपको बताए हैं। इन एग्जांपल्स में थोड़ा बहुत आपको समझ आए कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसमें हम कैलकुलेशन भी करेंगे। पहले इनको देखेंगे फिर मैं रिपीट करूंगा। एक अर्थक्वेक जहां पे MA होगा मैग्नीट्यूड, सिंपली MA आपको याद रखना है मैग्नीट्यूड, ये हमें कैलकुलेट करना है रेक्टर स्केल पे, क्योंकि हमें इतना पता है ये मैग्नीट्यूड 16,550 टाइम्स मोर पावरफुल, लेकिन हमें एक्चुअल मैग्नीट्यूड वैल्यू जो है जिसको हम स्केल वैल्यू पे 0 से 9 तक कैलकुलेट करते हैं वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि ये 16,550 गुना ज्यादा है, पावरफुल है। किस अर्थक्वेक से? उस अर्थक्वेक से जहां पे मैग्नीट्यूड 3.7 रिकॉर्ड किया गया हो कैलिफोर्निया में 2018 में। लेकिन अब मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे इस अर्थक्वेक का क्या है? एक तो ये, दूसरा इससे ज्यादा कितना 16,550, लेकिन उसका लॉग वैल्यू हमें देखना है। सो जब हमने 16,050 का 550 का लॉग वैल्यू मालूम किया तो वो 4.2 और इससे 3.7 से वो ज्यादा है 4.2। जब ये इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे इस अर्थक्वेक का हमें पता चलता है वो 7.9 है। इसी तरह से दूसरे अर्थक्वेक का अगर हम मालूम करेंगे, यही अर्थक्वेक है MA, इसका हम रेक्टर स्केल पे कैसे मालूम करेंगे? लेकिन इतना ही इस अर्थक्वेक का वीकर है 1 लाख टाइम्स, क्योंकि ये जो जापान की अर्थक्वेक है ये ज्यादा है 9.1 9.1 जो है ये ज्यादा है। अब मसला कितना ज्यादा है? मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे 9.1 कितना ज्यादा है? इसको हम ये 1 लाख गुना कम करेंगे, लेकिन लॉग को इस्तेमाल करके। जब हम 1 लाख गुना को 1 लाख टाइम्स को लॉग लगाएंगे तो इसका वैल्यू
मैंने आपको यहाँ थोड़ा दिखाया है ताकि आसाइश होगी आपको। 5 9.1 को जब -5 किया जाता है तो 4.1 4.1 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल पे इस कमजोर अर्थक्वेक का, जो वीकर है MA, क्योंकि 1,00,000 गना कम है किससे, जापान अर्थक्वेक से। कम होना मतलब माइनस करना है इसको, जब माइनस किया लॉग वैल्यू का ये एक्चुअल वैल्यू, फिर 4.1 बन गया। और एक तरीका हमारा जो फार्मूला है, हम इस फार्मूले को यहाँ पे यूज करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा फार्मूला है रेक्टर स्केल के लिए, MA माइनस MB, हर एक के लिए एक जनरलाइज्ड फार्मूला है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ B IB। ये क्या एक्चुअल, MA is 16,550, MA is equal to 16,550 times more than MB, powerful than or more powerful than, सॉरी यहाँ पे हमें IA वाले का लिखना है टाइम्स, क्योंकि ये एक्चुअल मैग्नीट्यूड MA और MB एक्चुअल मैग्नीट्यूड्स है जो डेसिमल नंबर 0 से लेके स्केल नंबर से 9 तक, लेकिन IA टाइम्स में, IA जहाँ पे होगा या IB, वो टाइम्स जो यहाँ पे लिखा है 16,550 टाइम्स, इन वैल्यूज को इनमें असाइन किया जाता है। IA क्योंकि A वाले का इसलिए IA होगा, IB लेकिन 16,550 IB is equal to IA. In other words, 16,550 IB is equal to IA. So we have to substitute 16,550 in place of IA here. So when we place this value, log of this I, instead of IA we put 16,550 IB, and here IB is also there. What we'll do here, MA is to be find here, जब हमने यहाँ पे MA को निकाला है, यही था हमारा मैग्नीट्यूड MA रेक्टर स्केल पे, यहाँ पे भी निकालना है। MB का वैल्यू ये है 3.7, MA is equal to, यहाँ IB और IB कैंसिल हो जाएगा, log of 16,550 का वैल्यू हमें निकालना है, MA minus 3.7, log of 16,550 का वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि वो 4.2 है एज पर द लॉग टेबल 4.2। अब ये -3.7 हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे ओर, 4.2 की ओर 3.7 दूसरे साइड में जब ट्रांसफरिंग करेंगे -3.7 को, ये +3.7 बन जाएगा। नतीजा ये होगा कि MA हमारा जो है मैग्नीट्यूड A जगह का रेक्टर स्केल पे कितना होगा, वो 7.9 होगा, जो हमने यहाँ पे भी निकाला है। सिमिलरली आप इसके वैल्यूज जो है यहाँ आपको याद रखना है, MA फिर से IA जो है इस वक्त वो है 1,00,000 टाइम्स ऑफ B, 1,00,000 टाइम्स ऑफ IB। यहाँ पे IA जो है इक्वल 1,00,000 टाइम्स IB, हमें IB की जगह अब इस IA की जगह 1,00,000 टाइम्स IB लगाना है वैल्यू। फिर इसका जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इसका वैल्यू जो है log ऑफ 1,00,000 का वैल्यू जो है वो 5 है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे 5, log ऑफ 5, तो ये log ऑफ दिस इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे IB सिमिलरली कट जाएगा। यहाँ पे एक्चुअल जो
हमारा वैल्यू इस वक्त MA का नहीं ढूंढना है बल्कि MB का वैल्यू हमें ढूंढना है। इस वक्त यहाँ पे 9.1 है MB का वैल्यू, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, फिर हमारा जो ये दूसरी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। सो आई विल गिव you it as an assignment to apply this formula, and the value of this next example you will easily get the value 4.1 by applying these value in this formula. So this was regarding the Richter scale, how we can apply the logs.